So what is a Redicin? So Redicin is basically we consider as a medication management device. Generally क्या होता है, बहुत सारे लोग जो multiple medications लेते हैं, there is a constraint of taking the medications on time. And with our devices, you can take your medications on time and you can cater the old data and that old data comes. So आपका जो Redicin है, आपका product क्या है? It's some hardware plus software solution. You put your old strip of medications in the compartment. Okay. और जब भी दवाई लेने का टाइम आएगा, आपको फोन से उसको one time set कर देना है. What do you consider by the word chronic disease? और इंडिया में लोग chronic disease का ध्यान कैसे रख सकते हैं? So basically, chronic diseases are basically the disease group. If I talk about the major disease group in the chronic disease segment, that is cancer, cardiac, जो भी hypertension है, BP है, diabetic है, neuro patients है, those are basically the chronic disease segment. In India, as I talk about, there are around 250 million plus patients in chronic disease segment. Go a little deeper on that India side of number. In India, around 6 out of 10 people have one chronic, and 4 out of 10 people have 2 or more chronic conditions. Give a message to people कि chronic disease जो है वो कितनी ज़्यादा जानलेवा है and इसके लिए लोगों को क्या क्या एक्चुअली प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो लोग अभी नहीं ले रहे हैं. हेलो एवरीवन, आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक स्टार्टअप के को फाउंडर है जिनका नाम है डोमिल. इनके स्टार्टअप का नाम है रेडिसिन मेडिसोल. ये जो स्टार्टअप है वो एक इनोवेटिव स्टार्टअप है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर रहा है. ये पॉडकास्ट में आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे. किसी को अगर जो इनसे इंस्पायर होके स्टार्टअप करना है तो उनका भी हमने ये पर्सपेक्टिव बताया है. ये कंपनी और इनके प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं और कितने ज़्यादा यूजफुल है, ये सब चीज़ हमने ये पॉडकास्ट में कवर की है. एज वेल एज गवर्नमेंट के भी आपको पर्सपेक्टिव ये पॉडकास्ट में देखने के लिए मिलेंगे. ये जो स्टार्टअप है वो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टार्टअप इनोवेशन के साथ लोगों की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है. इनके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के हैं जो क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सो लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट. So what is a Redicin? So Redicin is basically we consider as a medication management device. And so the generally क्या होता है, बहुत सारे लोग जो multiple medications लेते हैं, there is a constraint of taking the medications on time. So we call ourselves as medication management device, and with our devices you can take your medications on time and you can cater the old data and that old data comes. That's why the name Red. Okay. So what is the idea and inspiration behind this? So earlier one of the founders aunt was diagnosed with cancer. Okay. और कैंसर के साथ उनके पास 2 केयर टेकर थे. केयर टेकर रखने के अलावा भी मेडिसिन टाइम से नहीं ली जा रही. सो व्हाट वी सी द प्रॉब्लम कि हमने देखा कि दवाई टाइम से नहीं ली जा रही है, एंड वी एज वी आर इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, सो वी वांट टू सी ऑन टू दैट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सो वी सर्च थ्रू बिट, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे रखते हैं टू मैनेज आवर मेडिकेशन और पुट आवर मेडिकेशन. देयर इज नो सिस्टम दैट डिफाइंस कि मेडिकेशन ली है नहीं ली है, अलार्म बज रहा है, कैसे दवाई ले वगैरह. And we searched on a little bit on that side. Then we discovered that there is a gap in between that. कि जहाँ से medication लेना is very necessary, and there is not a proper solution which gives you a one-time solution. So then we came up with a device which reminds you which medicines you have to take on what particular time, and it gives you a whole report कि आपने कौन सी medicines ली है नहीं ली. So that's when we came with our smart pill box devices, and that's how the idea was born, and later we started off. Okay. So what was the idea behind the name? जैसे कि Redicin, it is similar to medicine. So ये है ना, startup में बहुत difficult होता है नाम choose करना. So how did you decide कि Redicin ही रखना? So basic idea of reminding name, we core to our vision कि भाई what we want to do कि we are a medication reminding or medication adherence company, medication management company. So as any startup founder will do, we went through कि भाई medication या health या वैसा उसका कुछ एक Greek name लिया या उसका कुछ संस्कृत name कुछ mix करके कर सकता है. And some of word we find one of name was mostly care. So it was a care giving out. We found out mostly care. We came for a remed. It's a REMED. It's a redefining medication. Okay. But उसका हमको website available नहीं मिल रहा था. Then we domain name नहीं मिल रहा था. Then we defined कि Redicin. Okay. It sounds like medicine. It's a redefining medicine. So Redicin Medsol. Then we came on to that. So आपका जो Redicin है, that is आपका product क्या है? So we launched our first product, Remed Plus, which is a smart pill box. So what we do, it's a hardware plus software solution. अब जो भी पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशंस पे होते हैं, जो मेडिकेशन रेगुलर यूज कर रहे हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट का जहाँ पे कंसर्न है, यू पुट योर ओल्ड स्ट्रिप ऑफ मेडिकेशंस इन द कंपार्टमेंट. Okay. और जब भी दवाई लेने का टाइम आएगा, आपको फोन से उसको वन टाइम सेट कर देना है.
whatever the medications are. It's a 5-minute process. Anyone with a simple, जिसको अलार्म सेट करना आता है, WhatsApp यूज करना आता है, they can do it. Once you're done, तो डिवाइस में वो डेटा सेव हो जाएगा. And at a predefined time, डिवाइस क्या करेगा? डिवाइस आपको LED इंडिकेशन देगा on particular compartment. The display, there is a display that shows you the name of the medicine and number of doses, and buzzing sound will happen. Okay. Indicating which medicines to take on what particular time. Okay. That is one part of it. This is a storage and reminding. Okay. Second part comes into it, which shows you the data. जब भी पेशेंट वो मेडिसिन ले लेते हैं, later on they can also see कि कितनी मेडिसिन मैंने ली हुई है, कितनी मेडिसिन मिस की हुई है. Okay. We call that medication intake report, adherence report, which is a very key USP of ours कि जहाँ पे आपको रियल टाइम adherence report मिलता है कि चलो आपने 80% मेडिकेशन टाइम से ली या 20% मेडिसिन आपकी मिस हुई है तो कैसे मिस हुई है. दैट होल medication intake report that comes out. It's a storage and reminding device which gives you all your medication management. Okay. So basically आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है that came by आपका जो इंस्पिरेशन था कि ये प्रॉब्लम आपको हुई उससे आया बेसिकली, और उससे आपने बाकी सब एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया. Exactly. बट ये मेडिकेशन अपने साथ में नहीं रख सकते. सो मेडिकेशन अपने साथ में लेके घूम सकते हैं. मतलब नॉर्मली व्हाट वी हैव टू डू इन इंडियन कंडीशन क्या होता है कि medications are very curatedly foiled. आप each medicines देखोगे, हर एक medication का पैकेजिंग डिफरेंट है, हर एक medication का साइजेस वगैरह इट्स वेरी डिफरेंट. Because in Indian humid conditions, each medicine are packaged in a certain way. So if you are roaming around, you have to take the whole package of the medication. जनरली लोग क्या करते हैं, या तो प्लास्टिक के डब्बे में मैंने दवाई अलग अलग करके साथ में ले जाने लगे, बट दैट्स नॉट प्रोबेबली द राइट वे टू डू इट. सो इफ यू आर गोइंग अराउंड, यू हैव टू टेक द होल स्ट्रिप ऑफ इट. The idea of Redison to put onto that side, you have a device which stores your medications. कि आपका device दवाई वगैरह सब उसमें रखा हुआ है, and it gives you a reminder on a certain place. Okay. So your storage and remindings doesn't become a concern. It gives you an alarm on a day-to-day basis. आपकी medicines को लेनी है उसके बारे में. Okay. So healthcare industry है, उसका कितना बड़ा मार्केट है? Healthcare is a very big market in India. Currently, if I talk about very niche of my side of it, it's a medication management market. If you see with our food habits and our जो भी अपना डेली काम जिस तरह से रहता है, in India there are around 250 million plus patients who are on a multiple medication. Okay. और chronic conditions I can say कि BP है, diabetic है, या फिर न्यूरो पेशेंट है. chronic conditions are more than 250 million patients are there in India was suffering through the in world. And if you go into US or UK side, वहाँ पे तो food habits or they are on a degrading on that side. So multiple hypertension, chronic patients are much worse on that side. If I talk about numbers, so healthcare medication management market is around $3 million invest. Okay. Yeah, that is emerging, right? That is emerging on 2024, I'm saying. Okay. Because अभी क्या हो रहा है, with every substance you have to take, there's a medicine for it. If you see currently, there is almost 90% of Indians have B12 and B3 deficiency because we can't get enough from the food. जो nutrition आप शायद 10 साल पहले एक सेब में से ले सकते थे, that nutrition value is much more decreased currently. Okay. So what happens is the nutrition value that you are about to get and that you are not getting, तो उसकी वजह से बहुत सारे body में changes आता है and lot more बीमारी भी उसके साथ that comes on. So उसकी वजह से there are a lot of people, I hold the hypertension people suffer through some mental illness. So दवाई पे हमारा rely होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया. So उसकी वजह से there are a lot of companies. If you see the e-pharmacy industry, there are many pharma companies that comes onto it. There are many things that comes onto that market, which is associated basically. If you take on medicines on time, your hospitalization cost will reduce. So hospitalization cost will reduce, आपका insurance वगैरह में benefit. That is currently $3 million industry, and by 2029, at industries expected around $7 to $8 billion industry in approximately next 5 years. And आपका जो business model है वो कौन सा है? आपका main basically B2G है या B2B है? So we work on different model. One very simple thing is of course device selling. We sell our devices on e-commerce portal with pharma company, with pharmacy stores, etc. That's our B2C direct consumer selling that we say. Second focus is a B2B, where there are hospitals, there are pharma companies, any healthcare company, any healthcare fraternity that you work with. We work very closely with them to have a healthcare gain a little more than that, to create a more healthier experience. So basically hospital में देखने जाए तो hospital में what we do, we put our devices onto premium sync rooms. Basically in the hospital segment what happens is एक क्लास basically 8 से 10 रूम cater करती है ना. And what happens is अगर 9 बजे का medicine है तो there are
minor chances there is a minor administrative delay that also happens onto that side. So we put our devices there. कि जहाँ से nurses management becomes much more easy. And there will be a one panel display on the hospital itself. जैसे patient discharge होता है, hospital can show कि भाई आपका जो यहाँ से patient निकला था, patient का adherence 95% उन्होंने medicine को time से ली. That hospital's value proposition as we say. उसके साथ ही associated basically कैसा रहता है, अगर patient के पास device है, तो next time जब patient visit के लिए आता है, doctor also knows कि how many medicines you are consuming. Okay. अभी कैसा होता है, डॉक्टर ओनली अज्यूम कि आपने जो भी मैंने मेडिसिन दिया वो मेडिसिन आपने पूरे टाइम से ली. ट्रू. और जनरली कैसा होता है कि आपकी 1 महीने की मेडिसिन है वो आपके आराम से 2 महीने से. तो अगर नेक्स्ट टाइम जब आ रहे हो डॉक्टर को पता है कि आपने मेडिसिन ही 50-60% ली हुई है, तो डॉक्टर्स कीज अ लिटिल मोर ऑन टू दैट साइड कि हाँ चलो आपने मेडिसिन 50% ली है तो मैं दवाई का डोज बढ़ा देता हूँ. तो दोज आर द B2B पार्टनरशिप ऑन दैट साइड. Other than that, we also work with pharma companies. Basically, बहुत सारी pharma companies से patient support program चलाते हैं. Currently, we are on the pipeline of working up order with one of India's largest pharma company. और उसके साथ हम patient support program चलाते हैं. तो basically उनके जो भी chronic patients वगैरह है, pharma company use those devices as gifting और उनको healthier lifestyle के लिए promote करने के लिए they sell our devices, they give our devices to those patients basically. So that's a patient support program that's also for pharma company. Okay. Clinical research is also something a very good B2B partnership for us because currently क्या होता है, the whole thing is a manual thing. If you have taken the medicines, so any clinical research company will note that. So you have taken the medicine, they note that part. With our devices, we can digitalize the whole process. If you have taken the medicines or not, your pharma company, the clinical research. It's kind of very autonomous process. Yeah, the whole system becomes very autonomous. And the digital data, we can check more accurately onto that side. So that's one way onto B2B side. Also in the insurance segment side, we can also do a collaborations with insurance companies. कि जैसे if I'm able to get the increase of adherence of let's say 90% मेरा adherence है, तो मेरा hospitalization कम होगा. हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जो पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम पे करना है वो कम होगा. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद इंश्योरेंस कंपनीज कि जहाँ से विथ यूजर्स ऑफ आवर डिवाइसेस इंश्योरेंस कंपनी कैन बेनिफिट इन द लैक्स ऑफ रुपीज फॉर each one patient. So they can let's say charge अगर आपका 90% adherence है तो you get 10% discount on your premium or something like that. True. So that's a one way around it. Will हो जाता है दोनों. Exactly. And the B2G also, because government is doing lot of research, lot of spendings in healthcare each year, so that is drastically increasing also. And basic two segments of it, TB and HIV are the major cause in India. That is, government is spending huge amount on that side. TB is a very root cause of Indian economy. और जहाँ पे तो TB और HIV के लिए गवर्नमेंट मेडिसिन फ्री में दे रही है, हेल्थ केयर कॉस्ट गवर्नमेंट फ्री के लिए दे रही है. वेर इन टॉक्स विथ गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स जहाँ पे TB और HIV के जो पेशेंट है उसके साथ हमारा डिवाइस हम अलाइन कर. तो इसके यूज केसेस अपना अगर जो ऐसे देखने जाए तो इट्स मोर देन जस्ट अ पिल बॉक्स. यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो रही है. Exactly. It's we are trying to create a whole ecosystem. That's why I say ecosystem, and it's a medication management system. That's why I earlier said it. Because the first idea of is कि patient को medicine ज़्यादा यूज हो रहा है, but also it is also helping doctors. उनको अपने patient का data मिल रहा है, hospital उनको patient क्या medicines ले रहे हैं उनको मिल रहा है, उनका compliance set हो रहा है. For pharma company, their drug development also can be digitalized in their whole process. And if you see on the last mile of it, कि जहाँ से e-pharmacy companies. So अभी if any e-pharmacy they are struggling with patient retention. If you see any big 3 pharma companies, so they exactly don't know when their medicines will be finishing up. With our devices, they'll know exactly कि ये patient का भी give them reminders कि आपकी 3 दिन पहले medicines खत्म हो जाने वाली. So they can give a prompt reminder to those patients. Any pharmacist can deliver. So those are like key partnership that can hold, medication system or some healthcare system को एक साथ लेके that can increase on a very years. Okay. तो ये वाला जो आप जो अपने पास डिवाइस है रेडिसन का, उसका क्या यूज है? मैं वो सेम चीज फोन से नहीं कर सकता? So basically क्या होता है, that is the very basic idea of devices. It gives you storage and reminding option. Okay. कि device में store कर सकते हो. You can take it around in anywhere. And it gives you a data side of it. So if you see on the app side of it, so there are multiple apps available. Even if 1mg, there are certain companies provide such apps जहाँ पे उन लोगों को medication reminder becomes a concern. Even if our phone has a reminder option.
But what happens, we have a tendency to swipe off the notification. The attention span is such low that अगर मैं आपके पास यहीं पे मीटिंग में बैठा हूँ, the medication pops up, the alarm pops up, I'll be like कि ठीक है अभी मीटिंग में हो, I'll just swipe off and take it. और मेरे पास वो कंटेनर भी नहीं होगा कि मैं लूँ और वगैरह। Exactly. So you don't वहाँ पे थोड़ा आलस आ जाता है। आलस आ जाता है कि हाँ ठीक है मेडिसिन अलार्म तो बजा है, बट ये एक मेल करके चला जाता हूँ, वहाँ जाके करना है। वैसा मेरे साथ है ना, ये वाटर वाले एप्लीकेशन में हुआ था। अगर जो आपका वो वाटर का एप्लीकेशन आता है कि हर 1 घंटे में बचता है इस बार, जस्ट स्वाइप इट ऑफ, क्या याद रहेगा। Exactly. After a while, you are not attached to it. Even and that's a one part of it. That the tendency of swiping off the notification. And there are people who take it very seriously onto that side. But वहाँ पे भी एक कंसर्न है कि आपकी दवाई आपके पास है नहीं. And the third part is कि very elder people की जहाँ पे phone usage is not there. जैसे what our devices, the first idea of putting our devices कि जहाँ पे ये elder patient जो है, जो patient home care में है, जहाँ पे उनको कोई ना कोई ध्यान रख रहा है, वैसे केसेस में कोई केयर टेकर वगैरह हमारा डिवाइस सेट कर देता है. जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए डिवाइस सेट करे. सो इफ आई एम आउट इन द ऑफिस ऑल्सो, दे हैव अ डिवाइस. उनको पता है कि जैसे यहाँ से बजिंग बजता है मेरे को दवाई ली है, उनको फ़ोन का ज़रूरत नहीं. तो वहाँ पे भी ऐसे पेशेंट यूज केसेस है जहाँ पे फ़ोन रखना या फ़ोन है नहीं उनके पास. और कुछ क्रोनिक डिजीज कंडीशंस में फोन्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. इफ यू आर इन अ हॉस्पिटल एनवायरमेंट तो वहाँ पे आपके पास फ़ोन होगा भी. तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ इट कि जहाँ पे ऐप इज ऑफकोर्स हेल्थियर. अब जब मैंने 50% मैं एविडेंस रिपोर्ट की जो बात कर रहा था, इफ़ यू हैव योर फोन तो इट कैन इंक्रीज अ 10-15% ऑफ इट. बट what we claim is with our devices we take that adherence up to 85-90%. वेरी श्योरिटी है ऐसा. मतलब अगर जो मेरे पास जो कोई डिवाइस होती है जेन्युइनली, तो मुझे ऐसा होगा कि अरे यार मैं इसको यूज़ करता हूँ एक बार, मेरे को नोटिफिकेशन आया, अरे चल ये तो रहा ले लेता है. So device will bug you. या और उसमें भी अगर जो मेरे पास 10-15 अलग अलग तरीके के मेडिकेशन है, एंड अगर जो वो ऑलरेडी बॉक्स में डिवाइडेड, आई वुड बी लाइक अच्छा ठीक है लेने That's a one way to it's a smoothlize your process. Yeah. ठीक है, वो फिर आपको हैबिट में आ जाता है कि हाँ it's a process of it. So what happens is बहुत सारे अब when I said the tendency of forgetful है, तो 50% जो मेडिकेशन इंटेक है तो 50 लोग जो भूल जाते हैं, उसमें द की रिस्पॉन्सिबल एरिया 70% लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि दे हैव टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटफुल. उनको लेना है बट भूल जाते. सो अगर आप फोन या मोबाइल ऐप से वो 10-20% वो एरिया कॉज क्लियर कर सकते हैं. बट वेन यू हैव अ डिवाइस एंड स्टोरेज दैट गोज टुगेदर, इट इंक्रीजेस मोर चांसेस. देयर आर सेवरल research paper also available with with mobile application how increase you can adherence, or with the device app how can increase the adherence. So it is a more accurate way we can say. But of course if you are comfortable around on that side you can definitely use it. But there is a very big segment कि जहाँ पे मोबाइल doesn't है. तो जो क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए पिल बॉक्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी. सो ये वाला था, ये तो बड़ा वाला केस है ऐसा जो अपने लिए यूज़ करते हैं, जो होम केयर स्पेशलिस्ट. सब कॉम्पैक्ट वर्जन कोई है. सो इसीलिए हम डेवलपमेंट ऑफ अनदर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ दिस. तो व्हाट विल हैपन इज बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन डायबिटिक के पेशेंट अराउंड वर्किंग क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा. We created a compact version of this device that you can carry it around anywhere. Functionality remains the same. यहाँ पे आपका LED indication होगा, buzzing sound होगा. It's a really nice device. यहाँ से आपको जो भी मेडिसिन है उसके अंदर रख सकते हो. ओके. There are 3 compartments, but 3 compartments में आपको ऐसा है कि भाई आपको मेरे को एक बड़ी स्ट्रिप रख है, so you can customize this device. ओके. So these are built in a way कि आप उसको customize कर सकते हो. And with one charge this goes up to 15 days. आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. इसमें भी सेम अलार्म बजता है टाइम. अलार्म बजता है. इसमें नोटिफिकेशन नहीं है सर. इसमें सिर्फ डिस्प्ले नहीं है. डिस्प्ले नहीं. एंड उसके अलावा फंक्शनलिटी रिमेन्स द सेम. फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है. सेम विद द सेम ऐप यू कैन कनेक्ट द बिगर डिवाइस एंड द स्मॉलर डिवाइस. ओके. और ये जो मटेरियल्स होती है इसमें कुछ मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक जैसा होता है तो वो है. इट्स नॉट मैंडेटरी बट वी यूज मेडिकल ग्रेड ABS 920 ग्रेड मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक विच यूज्ड ऑन हाई लेवल मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स, MRI मशीन्स वगैरह. तो उसका मेन फंक्शनलिटी क्या रहता है, इट इज़ अ मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक और उसके साथ वो इट डजंट इंटरेक्ट विथ एनी मेडिसिन और एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट. ओके. सो जैसे अगर मैं इसमें अंदर दवाई मैं स्ट्रिप के साथ भी रख रहा हूँ, इफ आई हैव टू पोर आउट दिस मेडिसिन, लेट्स से कोई मैंने विटामिन मेडिसिन वगैरह खुली रख दी वगैरह, तो भी द डिवाइस वोंट रिएक्ट टू इट. नॉर्मल प्लास्टिक में या नॉर्मल प्लास्टिक मैं वही पूछ रहा था कि हमारे घर में जैसे कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला जो बॉक्स यूज होता है उससे ये कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे. सो बेसिकली वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि वो जो डिवाइस है दैट मोस्टली दोज डिवाइसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉर्मल प्लास्टिक्स.
तो अभी क्या होता है, और उसमें कंपार्टमेंट्स आर सच लाइक दिस, तो ठीक है, तो बहुत सारी अपने को क्या करना पड़ता है, Fill off प्लास्टिक ये सब। फिल ऑफ करके आपको एक एक मेडिसिन अंदर रखनी पड़ेगी। ओके। और उसमें क्या होता है, जैसे 28 कंपार्टमेंट्स का भी आता है, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, वैसा करके। व्हाट यू डू इज, आपकी जो भी मंडे मॉर्निंग वाली 4 मेडिसिन आप उसके अंदर साथ में रख लोगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, इंडिया में ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मेडिसिन ऑल्सो रिएक्ट, so any pill also reacts with a pill, that's called a pill to pill interaction। अब जैसे आपकी डायबिटिक की कोई मेडिसिन, डायबिटिक की मेडिसिन आपकी नॉर्मल एसिडिटी की मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकती है। इन मेडिकल टर्म इट्स कॉल्ड पिल टू पिल इंटरेक्शन। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, द अफेक्ट दैट गोइंग टू गिव यू ऑन बॉडी, इट क्रिएट्स एन एडवर्स इफेक्ट विच कैन कॉज यू। सेकेंड थिंग अबाउट दैट इज देयर इज ऑल्सो अ पिल टू प्लास्टिक इंटरेक्शन। जो भी अपना नॉर्मल पिल है, इफ यू आर एक्सपोजिंग टू द एनवायरमेंट with the humid condition, there is a lot of there's a dew that comes in, तो उसके साथ क्या होता है, पिल भी थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है, it also reacts with the plastic। So it is very not advisable that you don't use those plastic pill boxes, and if you use those plastic pill boxes, आप उस पर tear up करके medicines मत रखो, because as I rightly said, each and every medicines are put up in such environment। वो एल्यूमिनियम फॉइल ही होगा, इन फार्मा कंपनी को स्ट्रिक्ट उसमें इंस्ट्रक्शन भी है कि जब आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करें, उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप यूज करते हो। उसमें भी कुछ डिग्रेडिंग होता है, दे डोंट अलाउ दैट प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट आइडियल दैट यू यूज दोस काइंड ऑफ प्लास्टिक डिवाइसेस। इफ यू वांट अ प्लास्टिक, तो आप उसमें दवाई का स्क्रीप पूरा का पूरा रखो। ये वाला प्रोडक्ट देखने के बाद मेरे को लगता ही नहीं है कि वो यूज करना चाहिए तुम्हें को, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग तो काफी ज्यादा हद तक यूजफुल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो प्लास्टिक में तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, आपका डिजिटाइजेशन ऐसे भी नहीं होने वाला। इट्स जस्ट कीपिंग द पिल इनटू डिफरेंट बॉक्सेस एंड द मोस्ट पार्ट इज वो कोई सेंस नहीं कर रहा है अल्टीमेटली। But a lot of क्या है कि that is easy Excel and that's been used since years। A lot of people comes out to us and ask us कि this pill boxes are available and what's the need of it। So अगर pill boxes are available, but it is still not solving the problem। There is a 50% is still the basic idea was tendency of forgetfulness। अपने घर पे वो नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे, तो बहुत सारे लोग उसमें दवाई रख देते हैं, अगर याद आएगा उसमें। तो इट्स जस्ट अ सेग्रीगेटेड वर्जन ऑफ दोस, but it doesn't give you reminders, doesn't store your data अपने medicines लिए नहीं लिए। That problems in it। That's why we want to solve that part of the problem। ओके, सो आपका जो बॉक्स है वो बेसिकली कौन सी ऑडियंस के लिए, मेरी एज के ऑडियंस के लिए है या काइंड ऑफ मोर एल्डरली या क्रोनिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली? So mostly that I rightly said, the most sale that we have was on a B2B side, कि जब तक हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट्स वगैरह या फार्मा को अपने पेशेंट्स के लिए ले लिया। On a retail side of it, our consumer, जो patient जो device use करेगा, that is an elderly patient for this particular device। ओके, ये बेसिकली जो भी रिपीटेटिव डेली रूटीन में जिनको मेडिसिन लेनी होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। तो one of those patient is on this what you rightly said, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशंस लेनी, एंड सेकेंड वंस आर एल्डरली पेशेंट्स कि जिनको मेडिकेशन मैनेजमेंट करने के लिए देयर इज एन हियर एंड देयर एंड दे यूज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। एंड सरप्राइजिंगली for all these use cases, the parents के जो बच्चे वगैरह हैं या कोई बाहर रहता है, those people buy this product। So we have people coming in from let's say Pune या Delhi, Bangalore वगैरह से वो ये devices purchase करते हैं for their parents or grandparents। True। So we say ourselves with our campaigns also, there's a best gift for your parents or grandparents। Because what we see कि हम वो कोई speakers वगैरह ले लेंगे, कोई photos वगैरह ले लेंगे, but this is a something device which can really use। अब यूज भी कर सकते हैं, इट ऑलवेज स्टेज देयर। सो वी डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन आल्सो। विद द फ्यूचर वी आर आल्सो ट्राइंग टू ऐड अ वॉइस ऑन टू दैट, यू कैन ऐड योर वॉइस ऑन टू दैट साइड आल्सो। लेट्स से एज अ पेरेंट, अगर मेरा आवाज उसमें जा रहा है डिवाइस में कि पापा आपकी दवाई का टाइम हो, दो स्मॉल नोटिफिकेशन, दो स्मॉल पर्सनल टच stays with you on that। You can also add the auto counting of whenever you include the medicine. Yeah. So that's there. Auto counting is something we are also trying to get onto that side, but the refilling is there, rightly said. Refilling is there. So refilling will be added। ये जो डिवाइस है उसको यूज़ करने के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है या जो फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है वो ब्लूटूथ से होता है या किस तरीके से हैंडल होता है? बेसिकली डिवाइस और ऐप जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस। जैसे ऐप से मैंने एक बार ऐप डिवाइस से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, जैसे नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर होता है,
और उससे डेटा ट्रांसफर होता है एंड जो डिवाइस में है डिवाइस से ब्लूटूथ से डेटा वापस आएगा। उसके अलावा कैसा होगा, इफ़ यू वांट टू डेटा ऑन द क्लाउड, अगर आपका फ़ोन का नॉर्मल इंटरनेट है, फ़ोन का नॉर्मल इंटरनेट आप रख सकते हैं, तो कहता है वो डेटा जो आपके ऐप में है वो ऐप से सीधा क्लाउड में जाएगा। तो उसके अलावा कैसा होता है, ऑल्सो वर्किंग जहाँ से लेट्स से सन और डॉटर इज इन कैनेडा। हाँ, अब ठीक है, अब वहाँ से बैठे बैठे उनको अगर देखना है तो उनको एक केयर टेकर डैशबोर्ड प्रोवाइड किया था। केयर टेकर डैशबोर्ड में कैसा होगा, वो वहाँ पे जहाँ पे है तो वो देख सकते हैं कि भाई चलो पापा ने आज जो दवाई है वो आज की दवाई है, 1 वीक से दवाई ये टाइम से ले रहे हैं, तो वहाँ पे बैठे बैठे भी उनका ध्यान रख सकते हो, उनको पूरा वहाँ से रिपोर्ट मिलता रहेगा। तो बेसिक कनेक्शन ब्लूटूथ, बट इसके अलावा अपना फ़ोन का नेट, आपका नॉर्मल इंटरनेट अगर चालू है तो वहाँ से डेटा क्लाउड पर चला। वी आर कमिंग अप विद अनदर वर्जन जहाँ से हम GSM मॉड्यूल बेस्ड डिवाइसेस या वैसे डिवाइसेस भी लॉन्च करें। करेंटली ब्लूटूथ इज़ अ मोर रिलेवेंट और बहुत ईजी टेक्नोलॉजी जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? So currently we are like 7 people, mostly from the tech and operation. Okay, who are the like head people and people who have hired, like you have hired some people now? So our first hiring was from my previous college, engineering college, and the first hiring is always a very emotional, we can say. So first hiring we had from technical side of it. So I look after sales and operation side of it. We have one people who takes care of our operation, and one of guy who takes care of firmware and whole tech side of it, and the app team who takes care of one of team who takes care of app जो कैसे manage हो रहा है वगैरह, and the testing team. Okay, That happens. so you are totally 3 partners coming together? Yeah, we are 3 co-founders and we have a team of under who manage this all jobs. Okay. So India में आपका basic competition कौन है अभी? India में we consider the biggest competitor is normal plastic pill box. बिकॉज इट्स अ माइंडसेट ऑफ पीपल, क्योंकि वो बहुत सालों से वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे घर पे तो कैसा होता है, वो बड़ा सा डब्बा होता है जिसके अंदर सब दवाइयाँ पड़ी, सब हाँ सब दवाइयाँ मिक्स होती है उनके अंदर, फीवर से लेके आपकी क्रॉनिक मेडिसिन सब उस डब्बे में पड़ी, वहाँ से लोग मैनेज करके ले गए। तो उसका थोड़ा ऑर्गेनाइज वे कुछ लोग हैं, तो उन्होंने मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे वाला पिल बॉक्स लेके दैट वी कंसिडर इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑन द इंडियन साइड ऑफ इट, बट विद द और यूजर एक्सपीरियंस थिंग स्ट्रीमलाइन ऑन टू दैट साइड। और हम जिस तरह से यूज़र को जो प्रोडक्ट दे दे उसके साथ भी वांट टू एलिमिनेट कि दिस इज द बेटर सॉल्यूशन ऑफ दैट। देयर इज ऑल्सो नॉर्मल कीपैड वाला फोन, देयर आर ऑल्सो आईफोन्स दैट आर विद दोज यूजेज, इफ यू वांट एन आईफोन देन यू कैन हैव। दैट्स द काइंड ऑफ कंपटीशन दे पुटिंग। जो क्रोनिक डिजीज के लिए है उनके लिए ये पिल बॉक्स होता है, और आपका पिल बॉक्स कैसा दिखता है? I'll just quickly show it. This is smart pill box, as we say. Okay. This is their device. So if you see, यहाँ पे e-paper display which is used in Kindle. Okay. And the compartment size are also such that आप पूरा वो पूरा strip piece पे रख सकते हो, just like this यहाँ पे मैंने जैसे पूरा strip piece पे रख दिया है। बराबर। Device is on, it constantly flicker, जो यहाँ से refresh होता रहेगा और data लेता रहेगा। Okay. I connect with my application is just like that. Okay. एंड वहाँ से मैं बेसिक मेडिसिन का डेटा वगैरह डाल दूंगा, कौन सी मेडिसिन है, क्या उसका नाम है, जस्ट अ 1 minute प्रोसेस। एंड वंस आई डू दैट, फिर जैसे मैंने यहाँ से सेव करूँगा, डिवाइस में आगे मेडिकेशन एडेड, और यहाँ पर डिस्प्ले पे की है मेडिकेशन एडेड सक्सेसफुली। True. तो उसके बाद फ़ोन का काम नहीं, इफ़ आई लेट्स से इफ आई हैव टू गो आउट एंड समथिंग एल्स, तो मैं फ़ोन लेके बाहर चलाऊंगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। डिवाइस में वो डेटा सेव हो गया। Okay. अब जब डिवाइस में आप यहाँ पे देखोगे सेकंड नंबर पे एक डॉट टिक विच रिप्रेजेंट्स इसके अंदर मेडिसिन है। Okay. जब भी मैंने 3:12 का अलार्म यहाँ पे सेट किया है, तो 3:12 पे ये रोज मेरे को रिमाइंड करा देगा कि दवाई लेनी। Okay. और दवाई ऐड करने के वक्त हम उनको पूछते हैं कि भाई आप अंदर कितनी दवाई ऐड कर रहे हैं। Okay. तो जैसे मैंने 10 दवाई ऐड की, तो 7 दिन बाद वो आपको रिमाइंड करा कि अब डिवाइस में 3 दवाई बाकी है, आप उसको रिफिल करवा दो। अभी जनरली क्या होता है, अपने जैसे ही आज दवाई खत्म होगी अपने आज रात को भागेंगे और दवाई ढूंढेंगे, तो उसको क्या होता है, एक आध दिन भी दवाई नहीं लेने का वो मिसहैप हो जाता है। तो उसकी वजह से हमने मेडिसिन रिफिल रिमाइंडर्स देना चालू, तो जहाँ से पेशेंट को पता चल जाता है। ऑल्सो वी कोलैबोरेट ऑन बैक एंड विथ फार्मेसीज एंड ई फार्मेसी कंपनीज। जैसे कोई लोकल फार्मेसी है, जैसा आपने परचेज किया, वो फार्मेसी वाले को डेटा मिल जाएगा कि ये पेशेंट का आज ये 3 दिन बाद मेडिसिन खत्म हो जाने वाला, दे कैन जस्ट कॉल हिम अप, भाई सर आपका मेडिसिन खत्म हो रहा है, डू यू वांट अस टू रिफिल, दे कैन जस्ट डायरेक्टली गो उधर वो रिफिल करवा सकते हैं। Okay. तो दैट बिकम्स अ थिंग। एंड उसमें हम 2000 mAh का बैटरी देते हैं, दैट्स अ चार्जेबल। Okay. तो एक बार चार्ज करते इट गोज अप टू 10 days विथ वन चार्जिंग। Okay. एंड वो 10 days कंसिडरिंग आपको दिन के 6-7 अलार्म है। Okay. सो इट्स
अलार्म टाइम, एलईडी इंडिकेशन राइट हियर, यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देखेंगे दवाई का नाम और डोज दिखाई देंगे। बताओ। ओके, सो इट्स इंसुलिन। या सो मैंने जो दवाई का नाम यहाँ पे ऐड किया, दैट्स राइट देयर। आई जस्ट ओपन अप, यहाँ से जो भी मेरे को दवाई लेनी है दवाई मैं लूँगा। जस्ट क्विकली टेक द मेडिसिन, once I put this in, once I close this, device will store that data और यहाँ पे आपको notification आएगा, amazing Tamil, you are right on time. So it's a small personalized notification with the name. Okay. And some of the patient really love that because it's a human touch. कोई लग रहा है कि हाँ कोई आपकी केयर कर रहा है। And उसके बाद आपको यहाँ पे एक other health report मिलेगा, कितने रिपोर्ट, कितने मेडिसिन ली हुई। So at the real time I can check. After a while I can also check from my phone. Let's say coming evening 4 दिन बाद मैं आता हूँ, 4 दिन बाद आके मैं देख सकता हूँ कौन से मेडिसिन मैंने ली हुई, कौन सी मेडिसिन मैंने मिस की। तो अल्टीमेटली काफ़ी ऑटोनोमस हो जाता है कि आपकी प्रेजेंस के बिना भी चीज़ें ऑटो पे चल सकती है। सो इट्स व्हाई वी से इट एज अ पर्सनल केयरटेकर कि ऐसे ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जैसे हम बाहर हैं, ऑफिस गए हुए हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स घर पे अकेले, तो दे ऑल्सो गेट कि भाई मेरे को याद नहीं रहता वगैरह। सो डिवाइस इज देयर, इट्स योर पर्सनल केयरटेकर टू टेक केयर ऑफ। So this is like for home and other stuff, and if you want to carry it somewhere, then कोई इसका mini version या So this is the first device we launched. उसके लिए हम दूसरा एक कॉम्पैक्ट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। Okay. कॉम्पैक्ट वर्जन का पर्पस वुड बी दैट कि जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक आर वेरी रूट कॉज इन द वर्किंग क्लास पेशेंट। सो व्हाट हैपेंस इज कि जहाँ वहाँ से आप हमारा कॉम्पैक्ट डिवाइस लेके जा सकते हो। तो बड़ा वाला जो है दैट इज राइटली एज आई सेड, इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। इज मोस्टली फॉर जो लोग पेशेंट होम केयर यूजेज में, एल्डरली पेशेंट है, उसके लिए द रीमेड प्लस द स्मार्टर, द बिगर वन डिवाइस इज अ मोर यूजफुल वन, एंड द कॉम्पैक्ट डिवाइस इज मोर यूजफुल फॉर वर्किंग क्लास पेशेंट। कि जैसे आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, ऑफिस जो डेली यूज के लिए जो पेशेंट जा रहे हैं उसके लिए कॉम्पैक्ट डिवाइस इज मच मोर कन्वीनियंट। ट्रैवलिंग वगैरह है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू यूज बोथ काइंड ऑफ डिवाइसेस। जैसे अगर आप घर पे है तो घर पे पूरा ये डिवाइस यूज किया, बट इफ यू आर गोइंग आउट फॉर 2 days तो आप साथ में कॉम्पैक्ट डिवाइस कैरी करें, तो बोथ कॉम्बिनेशन करके भी ले जा सकते हो। बट ऑन अ वेरी स्टैंडर्ड साइड ऑफ इट, दिस मच बिगर इज फॉर होम केयर पेशेंट्स वगैरह, और ये वर्किंग क्लास के जिनको ऑन द वो मेडिसिन लेते जाना है बाहर, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो बहुत सारे विटामिन मेडिसिन लोग लेते हैं, विटामिन के लिए यू कैन यूज दिस। स्मार्ट पिल बॉक्स जो है उसका फ्यूचर एनहेंसमेंट क्या है, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे? Probably once we are seeing कि हमने एक बड़ा वर्जन बनाया, if like compact वर्जन बनाया, what we are seeing is with the technology, I mean probably 2 साल पहले जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की कैपेसिटी थी that was very limited, and currently जो ब्लूटूथ की कैपेसिटी थी that is very increasing। हम लोग GSM मॉडल डिवाइसेस के, जहाँ से GSM मॉडल डिवाइसेस it can directly real time data मिलता है। True. So with the government we have proposed that, the health ministry हमने उनको यही प्रपोज किया है कि आप कुछ ऐसे रिमोट एरिया में कोई पेशेंट है वो जो दवाई लेता है तो सीधा गवर्नमेंट के डेटा बेस मिला है, तो GSM समथिंग यू कैन ऑल्सो ऐड कैमराज वगैरह कोई डिवाइसेस। इट्स अ वेरी कॉस्टली डिवाइस, बट इफ यू वांट टू स्टे ऑन अफोर्डेबल साइड ऑफ इट, देयर इज 1 or 2 सेगमेंट्स जहाँ पे ये सब चीज़ होगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, ऐसी सब चीज़ें हो सकती है। कोलैबोरेशन वुड बी अ मच मोर बिगर थिंग देन दैट। I talk about collaboration, जैसे what we are trying to do, we are trying to collaborate with e-pharmacy companies, like 1mg Pharmacy or NetMeds, any such big company we are trying to collaborate, because with the integration of devices, they get the notification कि ये patient के medicines खत्म हो रही, they can deliver this medication at patient's place, और वो patient retention increase कर सकते हैं। With some data, we are on the finalizing of those data. If they are able to do that, तो उनका पेशेंट रिटेंशन विल इंक्रीज अप टू 10 to 15%। 10 to 15% इंक्रीज से व्हाट वी हैव सीन इज दैट टॉप लाइन, दैट रेवेन्यू विल इंक्रीज अप टू 1000 crore yearly. So that's a big thing for them. So that's what we are trying to pitch, कि e-pharmacies में can collaborate something, they can give this devices for free, and we can collaborate on that. So e-pharmacy front is something we are also collaborating on that side, and it is something a way ahead of. And so this collaboration thing would be much more easier कि आपके Alexa के साथ we can integrate this our devices. We have put up a spot जहाँ पे हम Alexa के साथ integrate कर सकते हैं। You just say Alexa, put this medication on my reminder at 8 o'clock, and then it's 7 to that. Same on to that side device में हम लोग temperature sensors we are trying to increase. So let's say if you have a fever or you have a continuous monitoring, so you can just put your finger out there, तो वहाँ पे finger gun है that will measure कि अच्छा आपको मेडिसिन लिए। दिस ऑल थिंग वी हैव पुट ऑन इन पैटर्न। ओके, कि हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। ओके, ये प्रोडक्ट का पैटर्न, ये प्रोडक्ट का पैटर्न। सो इफ एनीवन इन फ्यूचर कम्स अप कि भाई मैं टेम्परेचर सेंसर वाला पिल बॉक्स बना दिया, दैट विल बी इंफ्रिजिंग आवर पैटर्न।
ओके अर्लियर वी ऑल्सो डन दिस कि हम ये सब डालने वाले हैं और ये सब हम फ्यूचर में करेंगे, तो कोई आगे आके भी वो करवा। तो आपने ये जो मेडिसिन काउंटिंग वाला जो फीचर है वो भी आपने पूरा इंक्लूड किया? हाँ, मेडिसिन रिफिल इज देयर, कि मेडिसिन रिफिल इज देयर, आप जैसे ही दवाई लेते हो तो उसका काउंटिंग होता रहता है। मेडिसिन रिफिलिंग इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, इट गिव्स यू अ रिमाइंडर व्हेन 3 मेडिसिन्स आर लेफ्ट, तो दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज। सो आपका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपांड करने का क्या प्लान? So globally, as I rightly said, healthcare is a very big market. Medication management कहीं पे भी कोई भी area में there is a bigger concern. We're looking out for something. Currently, we just are pan India now. So we're planning something for Dubai and US also. We are part of couple of programs. Basically, US Embassy का US Embassy's Nexus करके एक program है, which supports you for आपको US में expansion करना है वगैरह. They provide that support. We're connected with that. We are also part of Royal Academy of Leaders in Innovation Fellowship. And so वहाँ पे we got connected with couple of folks in UK, जहाँ पे NHS है, जहाँ पे जो पूरा ecosystem है healthcare का, वहाँ से we got connected. And we're also connected with Prototypes of Humanity. It's a annual thing दुबई में जहाँ होता है. We're also connected with it. So we have couple of connects. Probably in this year we are figuring out what way we want to do it. And there's something we're exploring. Probably Dubai thing is happening, US thing is happening. We're working out our best value proposition for that, and we are working out on all. क्रोनिक डिजीज में टीबी आता है, कैंसर आता है, HIV आता है, वो मोस्ट डेडली डिजीज है, ठीक है? तो इसे क्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? बेसिकली गवर्नमेंट के 2 सबसे बड़े इनिशिएटिव चलते हैं फॉर टीबी एंड HIV. तो टीबी में गवर्नमेंट, आई थिंक देयर आर 30-40 lakhs of patient every year that comes out for TB. And HIV maybe there is a lot of causes that happening, and government is doing some crazy marketing on that side उनको prevent करने के लिए और उनका spread अटकाने के लिए. And so TB के लिए specifically government started this 99 dot. अब 99 dot program में कैसा होता है कि for TB का basic change is you take your medicines for 9 months continuously, and if you miss that medicine for any particular time, that TB is occurred to drug resistant TB, which is a much more difficult to cure. तो फिर आपको 1-1.5 साल तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी on a continuous basis. Okay. On a government side, if you are converted to drug resistant TB, for each patient that cost is around 1 lakh rupees. So government bears all medicines cost, उनका report charges, उसको medical fees सब वगैरह government में करता है. Okay. And for HIV also उसकी जो भी medicines वगैरह government is providing that at a free of. 99 डॉट प्रोग्राम में गवर्नमेंट अभी क्या करती है, गवर्नमेंट असाइंस एनी पर्टिकुलर पेशेंट फॉर पर्टिकुलर एरिया. जैसे कोई भी वार्ड है, वहाँ पे कोई एक इंसान है तो जाएगा, जैसे ही टीबी डिटेक्ट होता है, इज गो देयर फॉर काउंसलिंग. वी आपको टीबी हुआ, यू हैव टू टेक दिस मेडिकेशंस ऑन टाइम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग. वंस दैट इज डन, दैट पर्सन हैज टू टेक मेडिसिन्स एवरी मंथ फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. और गवर्नमेंट ने 99 लॉस प्रोग्राम में कैसा किया है, आपकी जो भी मेडिसिन की स्लिप है उसके पीछे एक नंबर है. वंस यू टेक द मेडिसिन यू हैव टू कॉल ऑन दैट नंबर. आपको फिजिकली कॉल करना पड़ेगा. जैसे आप कॉल करोगे वो गवर्नमेंट के डेटा में नोट आएगा कि मेडिसिन ले ली है. दैट्स हाउ द करंट सिस्टम वर्क्स. सेम फॉर HIV. HIV में लोग मेडिकेशन फ्री में रेडी हैव टू कम फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, और जहाँ पे लोग मैन्युअली डेटा वगैरह मैनेज करते हैं कि ये पेशेंट ने इतनी दवाई ले गया, जैसे नेक्स्ट महीने है तो नेक्स्ट महीने वो इतनी दवाई ले गए. दैट ऑल गवर्नमेंट डेटा मैनेज. तो ये वाला जो पिल बॉक्स है वो गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. वी आर इन टॉक्स विद गवर्नमेंट कि जहाँ पे टीबी और HIV के पेशेंट के लिए वी कैन यूज दिस. तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही पेशेंट मेडिसिन लेता है तो पेशेंट मेडिसिन लेने के साथ साथ भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री में, दे हैव द होल रियल टाइम डेटा कि भाई यूपी में कोई रिमोट विलेज में कोई इंसान है, उसने 15 तारीख को दवाई ली थी. इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक we can link on to that. So that's something a long game that we are doing. And in India, as I rightly said, 30-40 lakhs of patients. But जहाँ पे these devices can be deployed, we are doing something. We are doing some trials probably this year. जहाँ पे TB और HIV के patient के लिए we can use this kind of test. और medicine भी government manage कर सकते हैं. तो अभी क्या होगा, उनको पता है कि ये particular region में इतनी medicines गई हैं और इतनी मेडिसिन कब फिनिश होने वाली. दे कैन ऑल्सो सेंड द मेडिसिन अकॉर्डिंगली. तो अभी कैसा होता है, अगर मेडिसिन भी एक्सपायर हो गए तो दे हैव द वेस्टेज ऑफ लैक्स ऑफ मेडिसिन एवरी ईयर, एंड गवर्नमेंट इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट. उनका वेरी प्राइमरी गोल ऑन टू दैट साइड इज पीपल आर गेट क्योर. तो ये कस्टमर्स को, जितने भी क्रोनिक डिसीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर जो ये डिसीज के लिए पर्टिकुलरली सपोर्ट करना है तो ये जो पिल बॉक्स है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यूजफुल आ सकता है. वेरी यूजफुल. कुछ भी एक्सपायर नहीं होगा एंड एवरीथिंग इज लाइक कम्प्लीटली
ecosystem, like fully controlled. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि एक एक स्टेप हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं दैट व्हाट मेडिकेशन मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी. यू डोंट हैव टू गो आउट, आपको एक ही जगह से सब कुछ सॉल्यूशन मिल जा रहा है. ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि आप गिव अ मैसेज टू पीपल कि क्रोनिक डिजीज जो है वो कितनी ज़्यादा जानलेवा है, एंड उसके लिए लोगों को क्या क्या एक्चुअली प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो लोग अभी नहीं ले रहे. I mean, it's a very disease. It's a deadly disease. I don't think so. उसमें ज़्यादा there is people need onto that side because yearly 200-250 million patients are suffering from that, and there's a large thing that happens. बट पीपल को, जैसे कि मैंने आपके पास इतना सारा डेटा है, सो यू नो अबाउट इट कैसे इंडस्ट्री चलती है, बट मैनी पीपल आर नॉट अवेयर विथ इट. क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है सुट्टा सिगरेट पीना या जो भी करना इट्स काइंड ऑफ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट एक्चुअली जब उसके आप chronic diseases में देखते हो बहुत problem. Exactly. So those are deadly diseases, and to prevent that, those few of the point I think I can consider those are very one thing. That one is a healthy eating. आप अच्छा खाना खाओ, do a healthy eating. Try and avoid outside food whenever you can. I mean, occasionally you have to do. You cannot avoid, that is fine. Second thing is do a regular exercise. You make your own regime कि भाई सुबह उठ के nothing else, you just walk for 15-20 minutes a day. That can also boost your good part in your body कि जहाँ से आपको अच्छे से be on a healthier side. Third thing is you do regular diagnostics. कि sometimes you don't even know कि and some of people don't even know कि उनको hereditary diabetes है. डायबिटीज हेरिटरी डिजीज है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर पे पता भी नहीं होता कि घर पे हेरिटरी डिजीज चल रहा है. वंस यू डू डायग्नोस्ड टाइम टू टाइम, एवरी 6 months आई प्रोबेबली आई फील दैट यू हैव टू डायग्नोस. तो ये कोई भी एज पे हो, कोई भी जैसे कि कोई लड़का है वो 21 साल का हो या 30 साल का हो या 50 साल का हो, यू हैव टू डू इट. आई मीन प्रोबेबली वंस यू आर हिट दैट एज अराउंड 18-20 अराउंड इट, then you should do it every year after it. And once you are on a working class people, when you are going out and you are having so many things, so your body is also adapting to that. So at that point of time, you also try and diagnose very frequently. After 30-35, you might have few diseases itself. तो बहुत सारी चीज़ें if you are around, तो जहाँ से air pollution वगैरह है या बहुत सारी खाने की condition that you cannot control. I mean, probably some of things you can control, but जो चीज़ आपके कंट्रोल में, but these 3 things are in your control. जहाँ से आप खाना हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, डायग्नोस्टिक करवाते हैं, and if you have the medicines, take your medications on time. It can be your nutraceutical medications. बहुत सारे लोग हैं vitamin deficiency. Vitamin deficiency is a big problem in India, and so many nutraceutical companies are coming in. बट आपको ऐसा लगता है वो चेंज होनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम. I mean, I see people every day who are taking vitamins. I mean, I used to have the vitamin D3 deficiency also when I started medicines वगैरह. Then vitamin D3 के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, you have to go out in sunlight also. भी 9 बजे अपना ऑफिस वगैरह से निकल के ऑफिस में आके बैठ के for like 8-10 hours, जहाँ से पिक वो पीरियड है इनिशियली 2-3 घंटे का, we are not going out. True. So we don't get that vitamin D out. And B12 also, mostly vitamin D and B12 also comes from fish foods. And India is a country जहाँ पे वेजिटेरियन लोग का रहना ज़्यादा है, उसकी वजह से फिश में से जो विटामिन डी और B12 मिलता है वो हमको नहीं मिलता. You have to find alternatives on that. But before that also you have to know if you have this deficiency. बहुत सारे लोगों को hemoglobin deficiency होती है. Then you have to eat, let's say meat है, गाजर है, foods onto that side. Once you know your cause, you will be able to characterize it when you want to, able to work around it very nice. मतलब ये वाला तो मतलब ये जो स्मार्ट पिल बॉक्स वाला जो है आपको तो बहुत डीपली इनसाइट्स है एक्चुअली. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डेडली है जो भी क्रोनिक है, और मैं तो डेफिनेटली अब तो अगर जो कोई होता है तो ये वाला जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. अगर जो मेरे पास में तो कोई रिकमेंडेशन होता है तो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए. इट्स अ गुड स्टार्टअप फ्रैंकली. अगर जो मैं आपको बताऊँ ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा, इट्स फ्रैंकली जब मैंने पहली बार ये आइडिया सुना था इट वाज काइंड ऑफ लाइक कि अच्छा नॉर्मल एक रिएक्शन आता है अपना सब पिल बॉक्स, बट व्हेन वी सी द एक्चुअल यूटिलाइजेशन इनटू द गवर्नमेंट पार्ट, इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, तो वो एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. एंड डाउन द लाइन जो 6-7 साल बाद जब हम लोग भी कुछ 35-40 साल के होंगे तब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है.
Yeah, cool. Thank you so much. Thank you for inviting. It's been amazing. Thank you for Thank you. Yeah. होप सो दिस पॉडकास्ट वॉज वेरी यूजफुल टू यू। ये पॉडकास्ट आपको कहीं पे इंस्पायर किया हो एंड हैज ब्रॉट अवेयरनेस टू यू, तो मेरा मोटिव फुलफिल हुआ। कमेंट करके बताओ इस पॉडकास्ट में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, क्या ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो भी आपके सामने पॉडकास्ट प्रेजेंट करूँ वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ। जल्दी से ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें क्रोनिक डिजीज कितनी ज्यादा जानलेवा है और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके बारे में अवेयरनेस मिले और ये स्टार्टअप को एक सपोर्ट मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे टैलेंटेड गेस्ट के बारे में जानने के लिए मिलेगा। टिल देन कीप इंस्पायरिंग।